Yes, sir. Yes, sir. Sure. Okay. So today I am starting with a new chapter. It is on refrigerants. We have completed the chapter on vapor compression cycle actually, but we still have to do some numerical problems. So what I will do, I will send you some numerical problems. You take it as an assignment and try to solve those. Okay. So this refrigerant chapter is very easy. Uh, so let us talk about it. Now, what is a refrigerant? A refrigerant is defined as any substance that absorbs heat through expansion or vaporization and loses it through condensation in a refrigeration system. So basically, it is producing the cooling effect. Refrigerant, what will it do? It will produce the cooling effect. It will absorb the heat through expansion or vaporization and lose through condensation in a refrigeration system. Okay. Now we can classify a refrigerant in two ways. One is the primary refrigerant and other is the secondary refrigerant. Now what are primary refrigerants? Primary refrigerants absorb heat directly from the products or space to be cooled. The heat absorbed may be in the form of latent or sensible. इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे हमने एक आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में हमने अगर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं तो प्रोडक्ट से सीधा जो है हीट वो रेफ्रिजरेंट को फ्लो हो रही है तो उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहेंगे। कुछ जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, अमोनिया है, एयर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं। या आजकल जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं R134A या से R410A या और भी जो भी नए रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं जो आजकल एसी में यूज़ हो रहे हैं या सपोज रेफ्रिजरेटर में यूज़ हो रहे हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ हो रहे हैं, तो इफ़ दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द प्रोडक्ट और द स्पेस देन दे आर नोन एज द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स कौन से होते हैं? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स आर दोज सर्कुलेटिंग सब्सटेंसेस which are first cooled with the help of primary refrigerants and are then employed for cooling purposes. Example, ice or brine. So this. Hello. Yes. Hello. Okay. हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? No problem, sir. Okay. Secondary refrigerants are those circulating substances which are first cooled with the help of primary refrigerants and are then employed for cooling purposes. Example, ice or ice, brine, etc. कैसे है? जैसे मान लो ये एक हमारे पास evaporator coil है, यहाँ पे suppose if I am considering that ammonia is entering, okay, then this coil, suppose it's a ice plant, so we have the containers here, okay, which contains the water, okay. So this water is to be converted to ice, okay, and outside we have brine solution. So this is brine. So first of all, this ammonia will take away the heat from the brine, okay. The heat will flow from brine to ammonia, so the temperature of brine will go down below that of water temperature. Now brine will not freeze below 0 degrees Celsius. So if even if the temperature of brine is, let us say, minus 15 degrees Celsius, but the water will freeze at 0 degrees Celsius. So it is in the can, okay. So it's a water can. So brine is acting here as a secondary refrigerant. All right. So ice can also be act as a secondary refrigerant. These refrigerants cool substances by absorption of sensible heat. So जो हम सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं तो वो सेंसिबल हीट से कूल कर रहे हैं, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हेलो कार्बन कंपाउंड्स हो सकते हैं। हेलो कार्बन कंपाउंड में कौन कौन से आते हैं? एक CFC है, एक HCFC है और एक HFC है। तो CFC क्या है? CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो तीन टाइप के हैं। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन्स एक अलग कैटेगरी है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, लेकिन
क्लोरीन फ्लोरीन नहीं होगा। ओके। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हो सकता है, जैसे वाटर हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, या अमोनिया हो गया। ये सब जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके। हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा ये तो सब जो रेफ्रिजरेंट से जो ऊपर बताए हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, जो कि हेलोकार्बन्स हैं, जिसमें CFC है, HCFC है और HFC है, या फिर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो ये सभी जो ऊपर वाले कंपाउंड हैं, ये तीन, ये अभी हम प्योर रेफ्रिजरेंट्स की बात कर रहे हैं। प्योर रेफ्रिजरेंट, प्योर रेफ्रिजरेंट। प्योर रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब है कि एक सिंगल कंपाउंड है। ओके। यहाँ सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल कंपाउंड या सिंगल एलिमेंट जो है वो है अगर, तो वो प्योर रेफ्रिजरेंट है। अब दूसरा केस क्या होता है, वी कैन आल्सो हैव दी ब्लेंड्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ब्लेंड्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एजियोट्रॉप, एक होते हैं नॉन एजियोट्रॉप, और एक इसमें कैटेगरी और होती है जिसको बोलते हैं नियर एजियोट्रॉप। तो आपको खैर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू फोकस ऑन एजियोट्रॉप एंड जियोट्रॉप। सो एजियोट्रॉप, जियोट्रॉप और प्योर रेफ्रिजरेंट, बेसिकली तीन तरह की कैटेगरी हो गई। ब्लेंड का मतलब क्या है, ब्लेंड का मतलब है कि हमने दो या तीन या चार प्योर रेफ्रिजरेंट्स को मिक्स कर दिया किसी पर्टिकुलर मास की रेशो में या वॉल्यूम की रेशो में, तो वो एक ब्लेंड बन गया। जियोट्रॉप में भी यही है, बट जियोट्रॉप भी एक ब्लेंड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर रेफ्रिजरेंट की। प्योर रेफ्रिजरेंट में जब इवेपोरेशन होती है ना, प्योर रेफ्रिजरेंट में जब इवेपोरेशन होती है या कंडेंसेशन होती है, तो टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। आपको पता है कि जैसे मान लो हम वाटर की बात करते हैं, सैचुरेटेड वाटर क्या होगा, अगर हम उसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बन जाएगा। तो इसी वाटर भी एक तरह से प्योर रेफ्रिजरेंट ही है। कौन सा रेफ्रिजरेंट है, प्योर रेफ्रिजरेंट है। और ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो इवेपोरेशन हुई तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। कंडेंसेशन करेंगे अगर हम, तो 100 डिग्री पे वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे स्टीम है तो 100 डिग्री पे ही वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्योर रेफ्रिजरेंट है। अब एजियोट्रॉप क्या है, एजियोट्रॉप एक वो रेफ्रिजरेंट है जिसमें दो रेफ्रिजरेंट या तीन रेफ्रिजरेंट मिले हुए हैं, दो या तीन प्योर रेफ्रिजरेंट मिले हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर रेशो में। और लेकिन जब ये कंडेंस करते हैं या बॉईल करते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल एक प्योर रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, एक एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट जो है दो या तीन प्योर रेफ्रिजरेंट्स का मिक्सचर है। और ये कभी भी इसमें जब बॉईल करता है या कंडेंस करता है तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी कि ये एक प्योर रेफ्रिजरेंट की तरह बिल्कुल बिहेव करता है। ये याद रखना है। जियोट्रॉप इससे उल्टा है। जियोट्रॉप में भी दो या तीन या चार या उससे भी ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को हम मिक्स करते हैं, पर्टिकुलर किसी वेट की रेशो में कर सकते हैं या मास की रेशो में कर सकते हैं, या वॉल्यूम की रेशो में कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी प्योर रेफ्रिजरेंट का ही मिक्सचर है, बट जब इसको हम बॉयल करते हैं या कंडेंस करते हैं, या मतलब जब ये बॉयल होता है या कंडेंस होता है, तो इसके टेम्परेचर में चेंज आता है। तो क्या चेंज आएगा, जब बॉयल करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे वाटर था, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बन जाता है, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। जियोट्रॉप में क्या होगा, जियोट्रॉप में जब बॉइलिंग होगी तो उसका टेम्परेचर हो सकता है 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, या 7 डिग्री सेल्सियस भी कभी कभी बढ़ सकता है। तो बॉइलिंग में उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और जब कंडेंसेशन होती है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और ये, और ड्यूरिंग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन बॉइलिंग पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, कंडेंसेशन हो रही है तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। प्योर रेफ्रिजरेंट के केस में जब बॉइलिंग या कंडेंसेशन होती है, टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता। और इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। एजियोट्रॉप
एक एग्जांपल है एजियोट्रॉप का, वो है R500 हो सकता है, या R502 भी हो सकता है। ये दोनों जो हैं ये एक तरह से एजियोट्रॉप है। और एजियोट्रॉप की जो सीरीज होती है रेफ्रिजरेंट की, वो 500 से ही शुरू होती है। कोई भी रेफ्रिजरेंट जो 500 की सीरीज में है, 500 से लेकर 599 की सीरीज में है, वो एजियोट्रॉप है। और जियोट्रॉप, जियोट्रॉप क्या है, या नॉन एजियोट्रॉप भी बोलते हैं इसको। जियोट्रॉप होता है R400 की सीरीज वाला। जैसे कि R400 सीरीज में क्या आ सकता है, R410A। ये R410A किस में यूज होता है, विंडो एसी में यूज होता है। ठीक है। और तो 400 सीरीज में जो भी रेफ्रिजरेंट आएंगे वो जियोट्रॉप होंगे, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आप पढ़ लेना। ये सारा का सारा मैंने सीपी अरोड़ा की बुक में से पीपीटी बनाए हुए हैं। ओके, यहाँ पे अब आ गया एमंग मोस्ट कॉमन रेफ्रिजरेंट्स, अमोनिया। अब अमोनिया क्या करता है अमोनिया को हम यूज़ करते हैं रेसिप्रोकेटिंग और स्क्रू कंप्रेसर में। कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, आइस प्लांट में, और फूड रेफ्रिजरेशन में। तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट जो है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू कंप्रेसर के साथ यूज़ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में कर रहे हैं, आइस प्लांट में कर रहे हैं, और फूड रेफ्रिजरेशन में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। वाटर, वाटर का यूज़ कहाँ होता है, वाटर का यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, एज ए वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम में इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पे वाटर तो रेफ्रिजरेंट होता है और लिथियम ब्रोमाइड ये एब्जॉर्बेंट है, या इट्स ए सॉर्ट ऑफ सॉल्ट। ओके, और वाटर का यूज कहाँ होता है, स्टीम इजेक्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी होता है, जो कि एयर कंडीशनिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस की तरह यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में। जब भी हमें प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम वहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं या ड्राई आइस यूज कर सकते हैं। और आजकल एक इसकी नई एप्लीकेशन भी आई है, इसकी नई एप्लीकेशन है, इसको हम यूज करते हैं ट्रांस क्रिटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल में। तो कहाँ पे यूज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ट्रांस क्रिटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल में यूज कर रहे हैं। ओके, इन रिसेंट पास्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेफ्रिजरेंट्स वर क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड this is propane, not propane, ethane. Okay, it is methane and it is ethane. So जितने भी रेफ्रिजरेंट हम पहले यूज करते थे या अभी भी कुछ उसमें से यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे डेरिवेटिव हैं मीथेन के और इथेन के, मतलब मीथेन और इथेन से बने हुए हैं। ओके, दी फुली हेलोजिनेटेड वंस आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफर टू एज CFC। तो जो फुली हेलोजिनेटेड है उनको CFC बोलते हैं, और जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम है और क्लोरीन एटम है और फ्लोरीन एटम है, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो H फॉर हाइड्रोजन, दिस C फॉर क्लोरीन, दिस इज फॉर फ्लोरीन, एंड दिस C फॉर कार्बन। सो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जिनके अंदर कोई भी क्लोरीन का एटम नहीं है, नो क्लोरीन एटम इन द मोलिक्यूल, उनको बोलते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और HFC। तो HFC का एग्जाम्पल आपको पता है, इसका एग्जाम्पल है R134A। HCFC का एग्जाम्पल है R22। और इसी तरह से CFC का एग्जाम्पल है R11, R12, R13। ये सब CFC के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अभी हम इनके केमिकल नेम के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी जस्ट इतना जान लो कि क्या रेफ्रिजरेंट है।
तो बेसिकली जब मैं R11 कहूँगा तो उसमें तीन चीज़ें निकलेंगी, एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक कार्बन। सो इट इज़ बेसिकली ऑल CFCs, R11, 12 और 13। The most common organic refrigerants that have been employed in recent past were, आजकल हो सकता है कि ये यूज ना होते हों, रिसेंट पास्ट में यूज हो रहे थे। ओके रोहित, ये देखो कितनी देर से आ रहा है। ओके R11, रिसेंट पास्ट में हम क्या यूज करते थे, R11। अब R11 का देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, इट इज CCl3F। सो क्या बना ये, इट इज ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। ओके, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज करते थे, अब नहीं करते। इन लार्ज कैपेसिटी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, लार्ज कैपेसिटी का क्या मतलब है, 100 TR से बड़े, बिगर देन 100 TR। ओके, 50 TR में भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो है 100 TR या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का आता है, उसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट बोलते हैं। R12 क्या है, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। कहाँ पे यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ, स्मॉल यूनिट्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते थे, इसको यूज करते थे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में और वाटर कूलर में। आजकल ये दोनों ही रेफ्रिजरेंट हम यूज नहीं कर रहे हैं, और इसका एक सीधा सीधा रीजन है कि इन दोनों में क्लोरीन है, और क्लोरीन क्या करती है, ये ओजोन को डिप्लीट करती है। तो हम जिस भी रेफ्रिजरेंट में क्लोरीन होगी उसको हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। R22, अब देखो R22 क्या रेफ्रिजरेंट है। देखो इसमें तीन चार चीजें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है डाई फ्लोरो मोनोक्लोरो मीथेन, क्योंकि इसमें दो फ्लोरीन के एटम है, एक क्लोरीन का एटम है, और ये मीथेन का डेरिवेटिव है। ऐसे मीथेन का डेरिवेटिव कैसे है, मीथेन में ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये रहा F, ये रहा F, ये रहा Cl और ये रहा H। ओके, तो ये बन गया R22 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको कहाँ यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में यूज करते हैं। कहाँ पे, विंडो AC में यूज करते हैं, आज भी यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हालांकि क्लोरीन है, लेकिन फिर भी इसको हम आज भी यूज कर रहे हैं, उसका रीजन बताता हूँ मैं अभी। और कहाँ पे यूज करते हैं, लार्ज यूनिट सच एज पैकेज यूनिट। पैकेज प्लांट के बारे में आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता। पैकेज प्लांट जो होता है, इसकी कैपेसिटी हो सकती है 5 TR की, 7 TR की, 10 TR की, और 20 TR तक ये जा सकता है। तो 5 से लेकर 20 TR के बीच में जो भी हो सकते हैं यूनिट्स, उनको हम पैकेज यूनिट्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में भी पास्ट में यूज किया गया है, आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं, और विंडो AC में जैसे आपको बता दिया। इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन के लिए। कहाँ पे, कोल्ड स्टोरेज में यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अमोनिया को यूज करते हैं, लेकिन R22 को भी कई जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट की सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, दो तरह की एप्लीकेशन भी हो सकती है। और किस कंप्रेसर के साथ यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग के साथ और स्क्रू कंप्रेसर के साथ भी यूज कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। अब देखो आगे क्या लिखा है, इट इज नाउ बीइंग यूज्ड विद सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स इन वेरी लार्ज कैपेसिटी एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। देखो पहले जो हम यूज करते थे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में, वो हम यूज कर रहे थे R11 को। R11 में क्लोरीन था, बहुत ज्यादा क्लोरीन था, क्लोरीन के 3 एटम थे R11 में। तो सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल रेफ्रिजरेंट है। ओके, और इसका ODP वैल्यू जो है, इसकी ODP वैल्यू को 1 लेते हैं, इसको बेस माना हुआ है, एक रेफरेंस माना हुआ है, जिसकी ODP वैल्यू, ODP क्या है, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, ओजोन डिप्लीशन जो है इसका 1 है, मतलब सबसे ज्यादा ओजोन को ये हार्म करेगा। तो इसके कंपैरिजन में R22 को यूज करना शुरू किया, क्योंकि R22 के लिए ODP की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 0.055। ओके, बहुत कम वैल्यू है, डेसिमल में है, जबकि R11 की वैल्यू जो है 1 है।
तो ये जो R22 की वैल्यू डिफाइन की गई है, ये R11 के कंपैरिजन में की गई है। तो R11 को एक बेस माना, एक रेफरेंस पॉइंट माना, और देखा कि उससे जितना ओजोन डिप्लीशन हो रहा है R22 का, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 0.055 टाइम्स ओजोन डिप्लीशन करता है। तो इसको अभी भी हम काफ़ी जगह पे यूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है। लेकिन अब नॉर्मली जो है, जितने भी विंडो एसी आ रहे हैं, अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं, उसमें ये यूज़ नहीं कर रहे। आज से कुछ टाइम पहले तक हम यूज़ कर रहे थे R410A, R22, शायद वोल्टास अभी भी R22 यूज़ कर रहा है। और आज जो लेटेस्ट आ गया है विंडो एसी का रेफ्रिजरेंट, वो है R32। तो बेसिकली ये तीन तरह के ये रेफ्रिजरेंट हैं जो विंडो एसी में यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ लेस कॉमन रेफ्रिजरेंट कौन कौन से हैं? R113 है, देखो यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो ये जो बुक से मैंने लिया है, वहाँ पे ये लिखा है लेस कॉमन, लेकिन आज की डेट में इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें यूज़ कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज़ कर रहे थे, एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि बेसिकली इसमें क्लोरीन एटम है। और ये देखो यहाँ पे कार्बन के दो एटम हैं, तो ये इथेन का डेरिवेटिव है। दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ इथेन। ओके। R114 है, इसके अंदर भी क्लोरीन है। इसको रोटरी कंप्रेसर के साथ यूज़ करते थे, तो आजकल इसको भी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज क्लोरीन इज देयर। R142B, अब ये देखो, ये एक रेफ्रिजरेंट अच्छा है। इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? हीट पंपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, या सपोज अफ्रीका जैसी कंट्री है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो एम्बियंट अगर जाता है तो कंडेंसर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या हीट पंपिंग है, हीट पंपिंग इन द सेंस कि जैसे कोई कोल्ड कंट्री है, वहाँ पे हीट पंपिंग की एप्लीकेशन होगी। वहाँ पे एयर कंडीशनिंग से तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे तो हमें रूम्स को गर्म करना है, तो हीट पंपिंग एम्प्लॉय करेंगे। तो हीट पंपिंग में हम R142B यूज़ करते हैं। और देखो ये करेक्ट, इसमें भी जो है क्लोरीन है, बट इसमें क्लोरीन की क्वांटिटी बहुत कम है। इसका ओडीपी मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ओडीपी की वैल्यू भी मुझे मालूम नहीं है। आई विल हैव टू चेक इट। उसके बाद R502 है। आपको बताया था 500 सीरीज क्या है? 500 सीरीज है एजियोट्रॉप। ओके। एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप क्या था? जो कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन के टाइम पे प्योर रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करता है, और इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इट बिहेव्स एज ए प्योर सब्सटेंस। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? लार्ज सुपरमार्केट फ्रोजन फूड कैबिनेट्स इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर रेशो। तो बेसिकली सुपरमार्केट क्या है? आजकल जो मॉल्स खुल गए हैं, वो एक तरह की सुपरमार्केट है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर द एफ एटम इन मोलिक्यूल makes it more physiologically favorable, but it is responsible for global warming। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर रेफ्रिजरेंट के अंदर क्लोरीन है तो वो क्या करेगा? वो ओजोन डिप्लीशन करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर फ्लोरीन है रेफ्रिजरेंट के अंदर, तो वो क्या करेगा? ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो CFC है, HCFC है, या HFC है, ओके, इसके अंदर क्लोरीन नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है? फ्लोरीन है। इसके अंदर क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। इसके अंदर भी फ्लोरीन है और क्लोरीन दोनों है। तो इसका मतलब ये है, CFC हो, HCFC हो, और या फिर HFC हो, इन सब का यूज़ हमने बंद करना है, क्योंकि HFC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। और उसका आपको पता भी है, आजकल जितनी भी आइस मेल्टिंग हो रही है और सी का लेवल राइज हो रहा है, या फिर जो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके। The chlorine atom in the molecule is considered responsible for the depletion of the ozone layer. This we have discussed. The hydrogen atom, अब hydrogen atom क्या करता है? In the molecule imparts a degree of flammability to the substance depending upon the number of these atoms. So जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम होंगे, उतना ज़्यादा ये फ्लेमेबल होगा। तो ये भी हमें देखना है कि जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मीथेन CH4, तो इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो इसकी फ्लेमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास C3H8 है। C3H8 क्या है? प्रोपेन है। और एक है C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन। ओके।
इसमें अब जो है कार्बन का कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, यहाँ पे भी बढ़ गए। तो इनको हम एज ए मिक्सचर यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। मैंने पिछली बार ये क्वेश्चन भी दिया था, किस रेशो में यूज करते हैं? 50% ईच बाय वेट। ठीक है, 50% बाय वेट, इसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन की, रेफ्रिजरेंट्स के डेजिग्नेशन की। तो जितने भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, सी एफ सी हों, एच सी एफ सी हों, एच एफ सी हों, हाइड्रोकार्बन्स हों, ओके, उसको उससे पहले हम जो है नॉर्मली कोई भी रेफ्रिजरेंट लिखते हैं तो उसको पहले हम आर लगाया करते थे, जैसे हमने लिख लिया R11। लेकिन आजकल हमने क्या थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में चेंज कर दिया, अब हम लिखते हैं CF11, ताकि हमें पता लग सके कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अगर जैसे R22 है, पहले हम R22 लिखते थे, लेकिन आजकल हम क्या लिखते हैं उसको HCFC22, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और कार्बन भी है, सभी कुछ है इसके अंदर। ओके, a compound, now focus here, a compound derived from a saturated hydrocarbon is denoted by a chemical formula. Now notice it here, it's a saturated hydrocarbon. Okay, it is denoted by a formula CmHnFpClQ। तो ये जो M, N, P और Q हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स हैं। ओके, इट्स रिटन हियर। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमें क्या करना है? हमें एक इक्वेशन यूज करनी है, वो है N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। ओके, तो देखते हैं जरा। तो कंप्लीट डेजिग्नेशन जो होगी वो इस फार्मूला से हम लिख सकते हैं। दोबारा देख लो इसको, CmHnFpClQ, CmHfCl, so Np, ओके, एंड Q। ओके, सो ये तो केमिकल नेम है और ये रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2। देख लो पीछे, ये इक्वेशन है। तो ये तीन चीज है, ध्यान दो। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला केमिकल फार्मूला, मतलब जैसे यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा उसका डेजिग्नेशन, जैसे R11 मिल सकता है, यहाँ से उसका नाम मिलेगा। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए मुझे जो है इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे, इसका यूज कैसे करना है। देखो, देखो दोबारा से यही लिखा हुआ है मैंने, CmHnFpClQ, ये केमिकल फार्मूला है। इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई करनी है? N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2। और कंप्लीट डेजिग्नेशन क्या होगा? ये होगा। ओके, ये डेजिग्नेशन होगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या किया हुआ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया? पहले केमिकल नेम बता दिया हमने। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, इट इज CCl2F4। ओके, CCl2F4। तो हमें कार्बन के एटम पता है, क्लोरीन के एटम पता है, फ्लोरीन के एटम पता है। ऑल राइट, तो हमें केमिकल फार्मूला क्या है? इससे इसको और इसको आपस में कंपेयर करो। तो हमें इसका डेजिग्नेशन निकालना है कि इस रेफ्रिजरेंट को, क्या रेफ्रिजरेंट है ये? टेट्राफ्लोरो डाइक्लोरो इथेन। क्या फार्मूला है इसका? टेट्राफ्लोरो डाइक्लोरो इथेन। नाम भी लिखा हुआ है मैंने पहले इसका, यहाँ पे। इसका फार्मूला बताना है। आप फार्मूला देख सकते हैं, बाद में ये निकल के आ रहा है, लेकिन इसको निकालना कैसे है उसको देखते हैं। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। n की वैल्यू, हाइड्रोजन का एटम कितना है? कोई नहीं है, तो n 0 हो गया। फ्लोरीन के एटम कितने हैं? p जो है 4 है। p कितना है? 4 है। और क्लोरीन के एटम कितने हैं? 2 हैं।
तो हमें सभी के एटम्स पता लग गए। नाउ द रेफ्रिजरेंट नंबर विल बी, नंबर कैसे आएगा हमारे पास? हमारे पास नंबर आएगा इस फार्मूला से, ये, ठीक है। क्या नंबर आएगा? देखो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे पुट किया 2 - 1, ओके। n की वैल्यू कितनी है? 0 है, और +1 है, प्लस p की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये आ गया R114। तो क्योंकि इसमें एन एन क्या था? एन हाइड्रोजन के एटम्स थे, तो इसका मतलब देयर इज नो हाइड्रोजन, इसका मतलब इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन है, तो इसको हमने CFC कह दिया, CFC114, या इसको R114 हमने कह दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे अगर रेफ्रिजरेंट है R12, R12, देखो अब एक्चुअली R12 को R12 नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं R012। अगर मेरे पास है R11 तो उसको मैं लिखूंगा R011, R22 है तो R022, R013, और इस तरह से, ठीक है। सो व्हाट विल बी इट्स केमिकल नेम? तो अब हमारे पास R12 दिया हुआ है, R12 बेसिकली R012 है, तो हमने हमें ये दे रखा है, ये R012। तो अब डायरेक्टली आप कंपेयर करो, P की वैल्यू हमें कितनी मिली? P की वैल्यू 2 आ गई, ये देखो यहाँ पे मैंने P की वैल्यू 2 पुट कर दी। N+1 कितना है? N+1 जो है 1 है, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। M-1 कितना है? 0 है, तो M की वैल्यू कितनी आ गई? 1 हो गई। इसके अलावा हमें एक इक्वेशन और सेटिस्फाई करनी है। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है? N+P+Q = 2M+2। तो हमारे पास P की वैल्यू है, M की वैल्यू है, और N की वैल्यू है। P की वैल्यू है, N की वैल्यू है, और M की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 2 है। तो जब ये हमारे पास आ गई, तो हमारे को बहुत इजी हो गया अब फार्मूला इसका निकालना। कैसे निकालेंगे? ये देखो, केमिकल फार्मूला का इक्वेशन क्या है? CmHnFpCl3। तो M की वैल्यू 1 है, N की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 2 है। तो क्या आ गया हमारे पास? C1H0F2Cl2, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये बना CF2Cl2, दैट इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। So I hope you have understood this. So shall we go for test now? Shashank. Yes, sir. So shall we go for test? Yes, sir. Yes. Okay. So okay. So you were taking test? Yes. So you will be sending that on our email I IDs. am on driving sir. You are driving. Okay. Then I will continue with the lecture. Because emergency थी. देख लो सर, एज ए विश से मैं गाड़ी नहीं लगा नहीं, के then I will continue. I will take it some other time. Okay. सर मैं एक्चुअली सोच रहा था शायद 2 आवर सर्विस में लोगे आप. See, अभी मेरे को कंटिन्यू करने दो. Okay. Now I hope this is clear to you. Okay. Now let us proceed further. Let us see. Now there can be brominated refrigerants. These are denoted by putting a B and a number equal to how many chlorine atoms are replaced by bromine atoms. Okay. तो अब क्या मतलब हुआ यहाँ पे? जैसे अगर हमारे पास एक रेफ्रिजरेंट है, जैसे R13 की अगर हम बात करें, R13 का फार्मूला होता है CF3Cl। तो अगर इसका क्लोरीन एटम जो है, अगर मैं इसको ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं, बी एटम से ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया मैंने, तो इसका डेजिग्नेशन क्या बन जाएगा? इसका डेजिग्नेशन बन जाएगा R13B1। तो R13B1 का मतलब है कि मैंने क्लोरीन एटम को जो है एक ब्रोमीन एटम से रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली व्हाट इज R13B1? इट इज CF3Br। तो क्लोरीन एटम को, ये जो क्लोरीन एटम था, इसको मैंने ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर दो एटम होते इसमें क्लोरीन के और दोनों को रिप्लेस करते ब्रोमीन से, तो B2 लिखते। अब यहाँ पे क्योंकि एक एटम को रिप्लेस करते तो B1 लिख रहे हैं। ओके, नाउ देयर आर सम
compounds which show the property of isomerization. So they are isomers, that is isomers can compounds with the same chemical formula but with different molecular structure. तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, ए या बी आर यूज्ड आफ्टर द डेजिग्नेशन. फॉर एग्जांपल R134A एंड R142B. अब एक्चुअली में R134A और R134, देखो केमिकल तो केमिकल फार्मूला सेम है इनका, लेकिन मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया. तो ए जो है, ए जो हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट्स बेसिकली आइसोमर फॉर R134A. नाम अगर लिखेंगे तो इन दोनों का नाम यही आएगा, C2H2F4. तो R134A और R134A, ये केमिकल नेम यही है दोनों का, लेकिन जब हम इसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में शो करेंगे तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा. ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस. आइसोमर्स को इस तरह से यूज करना है. तो जो एक इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ R134A का. एक तो इसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा. दूसरा जो कार एयर कंडीशनिंग है, कार एयर कंडीशनिंग में भी हम R134A को यूज करते हैं. अब एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं. मैंने आप लोगों को पहले ही डेफिनेशन बता दी है. एजियोट्रॉप्स आर मिक्सचर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स बट विच बिहेव लाइक ए प्योर सब्सटेंस. एन एजियोट्रॉप इज ए कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग मिक्सचर. आपको ये भी बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉइलिंग के टाइम पे. दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपाउंड्स बाय डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन करने से सेपरेट नहीं होंगे. दे आर गिवन आर्बिट्रेरी डेजिग्नेशन. एग्जाम्पल R502. तो जितने भी एजियोट्रॉप होंगे वो 500 सीरीज में है. फॉर एग्जाम्पल a mixture of 48.8% R22 and HCFC and 51.2% R115 which is a CFC. तो इन दोनों को जब हमने इस परसेंटेज बाय वेट में मिक्स किया तो ये एजियोट्रॉप बन जाता है. और ये जो डिस्टिलेशन पे नहीं ये सेपरेट आउट होते और ये एजियोट्रॉप की तरह जो बिहेव करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर की रेंज होती है. ओके, this mixture will behave as a azeotrope for a particular range of pressure only. तो पूरे के पूरे हर प्रेशर पे ये एजियोट्रॉप की तरह बिहेव नहीं करेगा. तो कुछ ही सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ही मिक्सचर्स होते हैं जो एजियोट्रॉप की तरह बिहेव कर सकते हैं. एक उनमें से R502 है, एक R500 भी होता है, और भी बहुत सारे आ चुके हैं. R507A भी होता है. ओके, इस तरह से बहुत सारे हैं. आजकल कोई भी रेफ्रिजरेंट की लिमिट नहीं रहेगी. पहले बहुत लिमिटेड होते थे, आजकल इनफाइनाइट हैं रेफ्रिजरेंट्स जो हैं. नॉन एजियोट्रॉप्स हैं जिसको जियोट्रॉप भी बोलते हैं. ये क्या है? जियोट्रॉप्स आर ब्लेंड्स ऑफ प्योर रेफ्रिजरेंट्स एंड अंडरगो नॉन आइसोथर्मल इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. आपको बताया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता ड्यूरिंग evaporation temperature. During evaporation, temperature increases whereas it reduces during condensation. ये आपको बताया था. Geotrops are designated using a arbitrary series starting with number R400. ये भी आपको बता दिया है. इसमें कौन कौन से होते हैं? R401 एक है, R410 है, R you name a number in the R104 series and it would be there. R420 भी होता है, R422 भी है. तो बहुत सारे हैं, तो लिमिट नहीं है इनकी. फॉर एग्जांपल ए जियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. कौन कौन सा रेफ्रिजरेंट है? HFC 32 का और HFC 125 का. दोनों ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, 50-50% बाय वेट. और इसको हम कहते हैं R410A. और अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको AC में यूज़ करते हैं, विंडो AC में. सिमिलरली R407C है, ये एक जियोट्रॉपिक ब्लेंड है. इसमें R23 होता है, R32 होता है और R134A होता है. ये उसकी परसेंटेज दे रखी है 4.5, 21.5 और 74%. इस मिक्सचर को मैंने अपनी एमटेक में यूज़ किया था अपनी थीसिस में.
अपना जो प्रोजेक्ट किया था, तो ये रेफ्रिजरेंट पे मैंने काम किया था। ये बात है 1997 की। ओके, अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट्स पोजेस इथाइलिन। अब अनसैचुरेटेड की बात आ गई है। अब अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जो भी होगा उसके केस में हम क्या करेंगे? तो अनसैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट जो होंगे पोजेस इथाइलिन और प्रोपिलीन एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसमें इथाइलिन होगी या प्रोपिलीन होगी, और उनको हम डेजिग्नेट करते हैं बाय पुटिंग 1 बिफोर M-1। तो 10 इथाइलिन, इथाइलिन का फार्मूला है R1150 हेयर। और दूसरी चीज जो है, जैसे हम पहले ले लेते हैं N+P+Q, सैचुरेटेड में क्या लेते थे? N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2। अब यहाँ पे ये नहीं लेना अनसैचुरेटेड के लिए। अनसैचुरेटेड के लिए हम ये यूज करेंगे N+P+Q इज इक्वल टू 2M। और ये 1 जो है सिर्फ अनसैचुरेटेड को ही शो कर रहा है, इथाइलिन और प्रोपिलीन को शो कर रहा है। तो 150 से ही हम काम चला लेंगे। ओके, और क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। तो इसको करके देख लेना, आई थिंक यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर। और केमिकल फार्मूला क्या है इसका भी अनसैचुरेटेड के लिए? वही है CmHnFpCl3। इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड है N+P+Q इज इक्वल टू 2M। कंप्लीट डेजिग्नेशन क्या है? R1। मैंने पहले भी बोला था 1 जो है ऑटोमेटिकली पहले ही लग जाएगा, बाकी सारा डेजिग्नेशन वही है M-1 N+1 P। तो इसको आप करके देख लेना। इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स क्या हैं? जो कि जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो है इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट है। और इनमें हम मोलिकुलर वेट में 700 ऐड कर देते हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया का क्या लिखते हैं? NH3। तो N क्या है? 14 प्लस हाइड्रोजन कितने आ गए? 3। तो ये बन गया 17। तो अमोनिया का डेजिग्नेशन क्या हो गया? हमने 700 + 17 ऐड कर दिया, तो 717। तो कोई रेफ्रिजरेंट जिसके आगे ये लिखा हुआ R717, ये अमोनिया हो गया। इसी तरह से वाटर को डेजिग्नेट करेंगे, तो वाटर का जो मोलिकुलर वेट है वो 18 है, तो 718 हो जाएगा। CO2 है, CO2 का मोलिकुलर वेट 44 है, तो 744 हो जाएगा। ओके, ओके। और इन केस ऑफ ब्यूटीन N10 है, is a double digit number, so the conventional method cannot be used. Accordingly, normal butane and its isobutane are designated arbitrarily as R600 and 600A। ओके, क्योंकि इसमें दो n की वैल्यू 10 आ जाती है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ लेंगे। तो बेसिकली आज मैंने दो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहला तो मैंने कोशिश किया है कवर करने का जो एप्लीकेशंस हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, उनको किस किस टाइप के हम रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं, और उसका फिर डेजिग्नेशन कैसे करते हैं। दो चीज़ें यूज़ करी हैं, उनकी कुछ एप्लीकेशंस भी बताई हैं मैंने रेफ्रिजरेंट्स की। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आई विल गिव यू द recording also. So if you have not understood anything, you can go through the recording. Okay, so